Good morning, friends. Praise the Lord. I bring greetings in the matchless name of the Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब आपका अभिनंदन करते हैं और In this morning, again, it's a joy and privilege to serve God. इस सुबह काल में ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। We thank God for the opportunities and the blessings which the Lord has given us to come to His house, come to His presence. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर के जो आशीष है, जो अनुग्रह है, जो हमारे ऊपर बना रहा और फिर से सौभाग्य दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ करके और उसकी सराहना करने पाएं। When we are not able to physically get together as a church, as a body, but we are people of God, wherever we are hearing the God's word. इस प्रकार से कलीसिया में बैठ करके एक साथ मिल करके आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोग जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं। Our God is good God. हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। Nothing can hinder or nothing can limit God's work. और कुछ भी परमेश्वर के कार्य के लिए एक मतलब कि रोड़ा नहीं बन सकता कोई भी चीज। God will do what exactly He wants to do. परमेश्वर वो करता है और वो क्या जो वो करना चाहता है वो होता है और करके वो करता ही है। It matters our life, how our relationship with Him, how we are related toward His call and His vision. और ये मायना ये रखता है कि हम कैसे हैं परमेश्वर के साथ, हमारा क्या संबंध है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। This morning I would like to take you through the scripture from Proverbs chapter 6 and verse 6 to 11. इस सुबह काल में मैं आपका मन ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा वचन नीति वचन 6 अध्याय का 6 से 11 तक। Let me again repeat that we will be meditating on God's word this morning from Proverbs verse 6 to 11. इस सुबह काल में हम नीति वचन से 6वें अध्याय के 6 से 11 वचन तक मनन करेंगे। Let me read for you. आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Go to the end, O you sluggard, and consider her ways, and be wise, which having no captain, overseers or ruler, provide her supplies in the summer, and gathers her food in harvest. How long will you slumber, O sluggard? When will you rise up? Rise from your sleep. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a flower, and your need like a armed man. आइए मैं पढ़ूंगी। हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कार्यों को ध्यान से देख, और ना तो कोई न्यायी, ना अधिकारी और न ही कोई शासक होता है, पर वह ग्रीष्म काल में अपने भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री एकत्र करती है। हे आलसी, तू कब तक लेटा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? और थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रखे थोड़ा और लेटे रहना, तब तेरी दरिद्रता राह के लुटेरे के समान है और तेरी गरीबी शस्त्रधारी की भांति तुझ पर आ पड़ेगी। Welcome back again. Here the scripture tells an example of ant. यहाँ पर जो वचन है वो एक चींटी का उदाहरण दे रहा है। Before we go further, let's have a word of prayer and move forward. आइए हम इससे पहले आगे बढ़े, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Eternal God, Heavenly Father, we thank you and praise you for this morning. We bless your name, and Father, we thank you for your word. Lord, teach us, speak to us. Lord, let your word may work in our life. Lord, that your word may help us to focus what you have called us, Lord. Thank you. Lord, in this morning, through this word, through the scripture, Lord, many may release
healing, deliverance, and blessings upon their lives, Father God. Yes, Lord. I thank you and praise you for hearing us. In Jesus' name we pray. Amen. Proverbs, the book of Proverbs, when we study, this is the one of the practical book. जब हम नीति वचन की किताब को पढ़ते हैं तो ये प्रतिदिन के जो भी हमारे जीवन में होते हैं उसके आधार पर है. And there are two books which has to go hand to hand, like we read Daniel and Revelation together. The same way we have to read the Proverbs, and then we have to go the book of James or Epistle of James together to study. This will give you more, because both books are very practical books. और जिस प्रकार से हम दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे चीज़ों को, वैसी प्रकार से हमें नीति वचन और याकूब की पत्री, हम दोनों किताबों को जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको बहुत ही अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से जानेंगे. The Proverbs, what is the meaning of Proverbs? Proverbs are simple moral statement, illustrations or highlight and the teaching of fundamental realities of life. जो ये नीति वचन का मतलब क्या है, ये नीति वचन जो है ये एक हमारे मोरल नैतिक शिक्षाओं पर आधारित है. And it's the fundamental realities of life. और ये वास्तविक जो है जीवन की वास्तविक Another word let's put is what the Solomon teaches that's very much implicated or implemented on our life, personal life. और जिस प्रकार से सोलोमन कुछ चीज़ों को यहाँ पर उसने जो लिखा है वो सिखा रहा है कि वो सब हमारे जीवन में एक बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं. The purpose of this book, इस किताब का लिखने का उद्देश्य ये है to teach how to attain wisdom and discipline and true life, how to do the right and just and fair. इसका जो लिखने का मकसद है वो ये है कि हमें एक नैतिक व्यवहार अपने जीवन में अच्छे सिद्धांतों को लेकर के और धर्मी जीवन बिताना है और सच्चाई और अच्छी मार्ग पर चलना है. Verse 2 and 3, chapter 1, verse 2 and 3. अब नीति वचन का Chapter 1, verse and 2 and 3, there you will find this. You can read it, please. नीति वचन पहला अध्याय 1 का 2 and 3. 2 and 3. Yeah. जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की पहचान हो, व्यवहार की प्रवीणता, धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता के लिए शिक्षा प्राप्त हो. This is the purpose of this book is written in these two words. यही जो अभी पढ़ा गया है ये उद्देश्य है इस किताब का. Let's read to know the wisdom and instruction, जिससे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, and discern the saying of understanding, समझ की बातों की पहचान हो, to receive instruction in wise behavior व्यवहार में प्रवीणता, and righteousness, धार्मिकता, justice, न्याय and equality. और निष्पक्षता के लिए. So this is the purpose of this book. यही एक है जो उसका उद्देश्य इस किताब का है. And the Solomon write this book at the early years of his reign. और जो सुलेमान जो राजा है उसने अपने राज्यकाल से पहले ये किताब को लिखा है. In the beginning time of his reign. अच्छा, उसने जैसे जब वो न्याय शासन पे था उस समय उसने शुरुआती तौर पर ये सब लिखा है किताब को. You know, Solomon is the son of David. और जो सुलेमान राजा था वो दाऊद का पुत्र था. And the David the son of Jesse. और जो दाऊद था वो जस्सी का पुत्र था. And the Solomon was the wisest man on the earth. और जो सुलेमान जो कहा जाता है जो राजा सुलेमान है वो पूरे संसार में सबसे बुद्धिमान राजा कहलाया गया है. The God has blessed him with a divine wisdom and understanding, and he was asked God to give him a wisdom. और परमेश्वर ने उसे बहुत ही बुद्धिमान बनाया और बड़े ही उसका बुद्धि से भरा है क्योंकि उसने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि की मांग की थी. The author of this book is the Solomon the king, and at the last moment the Agur and the layman
Lemuel were the author of this book. और ये बुक जो है अधिकतर इसके जो पाठ है वो सब सोलोमन के द्वारा लिखे गए हैं और कुछ 2-3 जो है लेसन That last part that written by Agur or Lemuel. और अगर और लेमुन के द्वारा आखिरी इसके कुछ पाठों को लिखा गया है. And the Lemuel his name means devoted to God. और लेमुन का मतलब है कि परमेश्वर को समर्पित. Devoted to God. परमेश्वर में समर्पित. And he was probably king and received the wisest teaching from his own mother about Lemuel. और वो भी एक राजा था, वो अपनी माँ से ये सब अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त किया है उसने. The Solomon contributes this all sections in 3 divisions, 3 ways. और जो सोलोमन राजा ने है इन सब चीज जो वचन है उसको 3 भागों में विभाजित किया है. Solomon write this all story or everything in this wisdom. This book contains the word wisdom many times, or wisdom has been in the New Testament that Jesus is our wisdom. और इस बुक में इस जो किताब है नीति वचन में उसमें बुद्धिमान शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया गया है और जब नए नियम में पढ़ते तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा बुद्धि है. And the key verse of this book is called chapter 1 verse 7. और जो इस किताब का जो कि मतलब कि कुंजी शब्द वचन है वो 1 verse 7 1 का 7 है. Where it says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है. And fool despise the wisdom and instructions. मूर्ख ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं. So this is the key verse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge. और ये एक मुख्य कुंजी मेन कुंजी इसका मतलब कि कुंजी शब्द वचन है जो कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है. Dear friends, how many of you have seen those who fear God? God bless them extraordinary wisdom. और कितने लोगों ने मेरे प्रियो आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्होंने परमेश्वर का बहुत ही भय माना है और उसके वचन के भय में चलते हैं उनको परमेश्वर ने कितना ही आशीषित किया है. I am the living testimony on this. मैं अपने आप को इसके लिए मतलब कि एक जीती जागती गवाही बता सकता हूँ. Even James chapter 1 verse 5 says. और याकूब की पत्री 1 का 5वां वचन इस प्रकार कहता है. If anybody lacks the wisdom, ask God and God will give him abundantly. और वहाँ इस प्रकार लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको बड़ी उदारता से देगा. In this morning I would like to encourage especially to the parents, when you see your child is not capable or not able to do, never neglect him, never insult him, but this is the word of scripture, sir. If anybody lacks the wisdom, ask God. There is a place where you and me can bring our supplication or prayer request before God, and God who gives the wisdom. And Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. मेरे प्रियो, मैं विशेष रूप से सुबह काल में अभिभावकों को उत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आपके बच्चों में कुछ ऐसी बातें हैं वो नहीं सीखते हैं, समझते नहीं हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना करें. उस परमेश्वर से जो उदारता से देने वाला, वो बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है, हम उनके सामने आए और उससे प्रार्थना करें. All are not the same. हम सब एक जैसे नहीं हैं. Everybody has a different capacity and different level of understanding and different level of understanding things. और हम सब में अलग अलग एक मतलब कि समझने की और विवेक की बुद्धि है. But the God is the beginning of our wisdom. लेकिन The fear of the Lord is the beginning of wisdom. लेकिन परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है. So here the Solomon tells the fear the Lord and you shall receive the wisdom. यहाँ पर राजा सुलेमान इस प्रकार कहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करो. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. पहला कुरिन्थियों 1 का 13. 1 verse 30. 1 का 30 इस प्रकार कहता है. But of him you are in Christ Jesus. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 30. Yeah. परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा. Here the apostle Paul tells
who what Jesus become for him. You are in Christ Jesus, who become for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार कहता है, उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा. As the Solomon starts and tells that wisdom, fear of the Lord is a wisdom, and here the Apostle Paul says over wisdom. That Bible tells that the God choose the foolish of this world to despise the wisest men of the world. जब वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और वहाँ सुलेमान भी कहता है कि यदि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है. So Christ is our wisdom. यीशु मसीह हमारा बुद्धि He is है. our righteousness. वही हमारी He is धार्मिकता our है. sanctification. वही हमारा शुद्धता शुद्धिकरण. है, शुद्धता है. And He is our redemption. छुटकारा. वही हमारा छुटकारा देने वाला है. Dear friends, मेरे प्रियो, fear of the Lord is the wisdom. परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है. Now let me categorize knowledge and wisdom. अब मैं आपको ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताना चाहूंगा. Categorize, differentiate. इन दोनों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा. Having knowledge is good, but there is a vast difference between having knowledge and wisdom. और ज्ञान प्राप्त करना एक अच्छी बात है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान, बुद्धिमान और ज्ञानवान होना वो एक अलग अलग बातें हैं. What is knowledge? ये ज्ञान क्या है? Knowledge is having facts. फैक्ट्स, जो ज्ञान है वो एक तथ्य है, तथ्यों पर आधारित है. Yeah, means reality, getting something and having reality. और वो एक वास्तविकता पर आधारित है. You can gain knowledge through the books, and you can get the knowledge from the internet. You can get knowledge from anywhere else, outside appearance. You can get all the facts. आप ज्ञान जो मतलब कि कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो नॉलेज इससे बुक किताबों से, इंटरनेट से और तमाम चीज़ों से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं. There is no end of learning. और सीखने की कुछ भी सीमा नहीं है, उम्र नहीं है. Then what is wisdom? लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है? What is wisdom? बुद्धिमान बनना क्या है? Wisdom means applying those facts in life. बुद्धिमत्ता मतलब ये है कि वो सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए. Knowledge you can get anywhere, but wisdom comes from God. हम ज्ञान प्राप्त कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिमत्ता है वो सिर्फ परमेश्वर से प्राप्त मिलती है. The wisdom comes from God. बुद्धिमत्ता परमेश्वर से मिलती है, प्राप्त होती है. बुद्धि परमेश्वर से मिलती है. Yeah, then it says, in this you will know, we must learn how to live and what we know. और उससे हमें जानते हैं कि हमें कैसे जीना है और क्या Knowledge you will tell you or teach you how to live, but wisdom you will go what you have, how to live or how to apply. जो ज्ञान है वो जो हम नॉलेज मतलब ज्ञान है उसको बस हम सीख सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि है वो उससे हमें कैसे अपने जीवन में लेकर और कैसे चलना है वो सिखाता है. Suleiman writes 3 volumes of wisdom. Suleiman volume मतलब शाखाएं. जो सुलेमान राजा ने 3 बातों को बताया है, 3 चीजों को उस वचन से बताया है. Wisdom, about wisdom. अच्छा, बुद्धि के बारे में. He speaks about wisdom in a Proverbs. उसने नीति वचन में बुद्धि के बारे में whole book. और पूरे किताब में You will hundreds time you will hear about him about the Proverbs, about the wisdom. और आप जब ये वचन को हम पढ़ेंगे तो मतलब सैकड़ों बार हम उस बुद्धि के बारे में सुनेंगे, देखेंगे. And also he speaks in ecclesiastic. और उसने सबोपदेशक सबोपदेशक में भी बताया है. And then Song of Solomon. और श्रेष्ठ गीत में भी बताया है. He has
explained or he has emphasized about wisdom in these 3 volumes. और इन तीनों वॉल्यूम्स में उसने बुद्धि के बारे में बहुत अच्छी खूबसूरती से उसको बताया है. In these 3 books, under the inspiration of the Holy Spirit, he gives a practical insight and guidelines for the life. उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए उसके द्वारा उससे प्रेरणा प्राप्त करते हुए बहुत ही खूबसूरती से कि बुद्धि क्या है, बहुत ही खूबसूरती से उन सब बातों को परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बताया है. Practically for implementing guidelines for our life. और उसने मतलब कि जो हम व्यावहारिक जीवन में अपने जीवन में जब उस बुद्धि और बातों को हम लेकर चलते हैं, वो उसने वहाँ पर सब चीजों को प्रदर्शित किया है. Book of Proverbs deals with the matters which we are facing day to day. और जो नीति वचन जो है वो आज जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो महसूस फेस करते हैं उसके बारे में भी आज भी वो ऐसे ही बताता है. It deals with the matter or topic called our youth, the problems of youth. और ये हमें मतलब कि जवानों की जो समस्याएं हो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है. This book also deal with the discipline. और ये जो किताब है ये व्यवस्था हमारे अनुशासन किस प्रकार से होना चाहिए हमारे जीवन में उसके बारे में डील करता है. This book also deal with the family life. और ये जो किताब है हमारे पारिवारिक जीवन किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में डील करता है. It speaks about self control. और ये मतलब कि स्वयं सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताता है. And the resisting temptation. और ये हमारे से कैसे बचना. हाँ, कि हमें परीक्षाओं से किस प्रकार से बचना है उसके बारे में हमारे साथ डील करता है. And it also help us to understand our business matters affairs. और वो business matters. अच्छा, और हमारे जो भी व्यावसायिक है कार्य उन सब के बारे में बताता है यहाँ पर. And it also speak about words and the tongue. और यहाँ हमारे जो मुंह से निकलने वाले शब्द और हमारी जीभ किस प्रकार से बोलती है चलती है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है. This book also tells us to knowing God, having more hunger to know God. और ये किताब जो है कि हमें परमेश्वर को और अधिकता से जानना है उसके बारे में भी डील करता है. And it also speak about marriage. और ये विवाह के बारे में भी बहुत अच्छे से बताता है. It also speak the seeking truth. और ये सत्यता की खोज किस प्रकार से करें वो उसके बारे में भी बताता है. It also deal with the wealth and poverty. और ये गरीबी और धनी बनना किस प्रकार से है वो कैसे डील करना है. Immorality. और मतलब कि पापों के विषय में भी बताता है. And mostly it speaks about wisdom. और सबसे ज्यादा इसमें परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बताता है. Dear friends, I think almost every corners of our life has been touched or described in this book. और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि इस किताब में जो है कि हमारे जीवन की हर एक जो भी जीवन की हर एक प्रतिक्रिया और हर एक पलों को जो हमारे जीवन से होकर चलते हैं आते हैं वो सब उसने छू करके यहाँ से गया है. And whatever we live in this world, everything connected to us has been dealt in this scripture. और संसार में जब हम जीते हैं जिन सब बातों से हम गुजर रहे हैं वो सब बातें इस किताब में हैं और डील की गई हैं. The word Proverbs come from Hebrew word. जो वर्ड प्रोवर्ब्स है नीति वचन है वो इब्रानी भाषा में से इस प्रकार आता है. इब्रानी भाषा से आता है. इब्रानी भाषा से आता है. And it says to rule or govern. To rule हमारे गवर्न मतलब कि हमारे दुखपन में. No. ग्रॉन means to rule मतलब शासन करना और हमने और शासन करने के ऊपर बात करता है. हाँ, शासन करने के ऊपर बात करता है. And it also reminds us. और ये भी और बताता है. Admonishes providing the profound advice to governing our lives. ये सजेशन हमारा एडवाइस करती है कि हमारा जीवन जो है आत्मिक होना चाहिए. हमारा जीवन का जो आवश्यकता है वो सिस्टमैटिकली गौण होना चाहिए. So this is what the things this scripture deals with. Yeah. This is what the scripture deals with us. और इस प्रकार से ये वचन मतलब कि हमें अनुशासित करता है. You may wonder how wonderful and how beautifully the
years ago, even thousands years ago, the Spirit of God connected to us. The Spirit of God led the man of God to prepare us ahead of time when that we will face the time and challenges in life. और जिस प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने सैकड़ों साल हजारों साल पहले उस परमेश्वर के दास को सुलेमान को इस्तेमाल किया कि वो उसने वो वचनों को उन बातों को जो हमारे जीवन आज के दिन आज वर्तमान काल में दिन प्रतिदिन में हम जो सहते हैं देखते अपने जीवन में उसने लिखा ताकि हमें इन वचनों से कुछ सीख सकें. Dear friends, मेरे प्रियो, I would like to bring several principles of life in the two parts. मैं सात बिंदुओं को आपके सामने आज बताना चाहूँगा. Which principle of life? Principles of life. And in a seven point with the two parts. और सात बातों को लेके आऊँगा दो भागों में. And I will be bringing through the life or through the illustrations of an ant. और मैं उसको एक चींटी का उदाहरण को लेकर के बताना चाहूँगा. God teaches things through many things. परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजों से सिखाता है. Sometimes God teaches through the birds. कभी परमेश्वर हमें पक्षियों से सिखाता है. Sometimes God teaches through the sky. कभी परमेश्वर हमें आकाश से सिखाता है. Sometimes God teaches through animals. परमेश्वर हमें जानवरों से भी सिखाता है. And sometimes God even teaches through the insects. और यहाँ तक कि परमेश्वर कभी-कभी हमें स्मॉल छोटे-छोटे जंतुओं से भी सिखाता है. And this morning we have lesson to learn from the ant. और इस सुबह काल में आज हम लोग एक छोटी सी चींटी से सीखेंगे. Let me bring you back to the chapter 6 and verse 6 to 11. आइए हम लोग फिर से अपने 6वें अध्याय जिसे हम लोग मनन करने जा रहे हैं उसमें आएंगे. Here verse 6 says, go to the ant. यहाँ पर जो 6वां वचन कहता है चींटी के पास जा. Dear friends, we are commanded to go to ant and learn. मेरे प्रियो, हम लोगों को मतलब कि वो की जा रही है, कमांड किया जा रहा है कि आप जाओ और चींटी से सीखो. Especially here, the scripture tells to the sluggard. और यहाँ पर जो वचन है ये स्पेशली आलसी लोगों के लिए बोला जा रहा है. Don't get me wrong, I am not telling that you are a sluggard or you are a lazy or you are there is nothing to do with you with the sluggardness or this laziness, but there is something to learn from this scripture. और मैं आपको प्रियो इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि आप आलसी हैं या कुछ हैं, लेकिन मैं इस वचन से कुछ चीजों को सिखाना चाहता हूँ. Dear friends, we should be very much able to do when our time is busy. और मेरे प्रियो हमें जब हम इतना बिजी हैं उस समय भी कुछ करने की जरूरत है. And even the life goes slow, then also we need to be able to do something. यहाँ तक कि जब हमारे जीवन में बहुत ही धीमी प्रक्रिया से चल रहा है उस समय भी हमें कुछ करने की आवश्यकता है. Laziness is something different and going slow is totally different. और जो आलसीपन है वो एक अलग चीज है और जो धीरे धीरे चलने की बात है वो एक अलग चीज. If you are out of job, it not because of your purpose, because of your intention you are out of job, but you are out of job, that it doesn't mean this scripture is not telling about that in the content. और ये इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग सोचें कि आप मतलब अपनी नौकरी से हट गए हैं या नौकरी नहीं है और इस प्रकार से आप बहुत धीमे चल रहे हैं. ये इससे कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन से और इस कंटेंट से. The sluggardness is totally lazy. You have a purpose and you are not able to attempt your purpose. You are not able to move toward your purpose. That is called sluggardness. और जो ये आलसीपन है ये इसका मतलब ये है कि जब हम जो हमें उद्देश्य से जिससे हमें चलना है उससे नहीं चल पा रहे हैं और that is called laziness. और उसको ही क्या बोलते हैं, आलसीपन कहते हैं. But we have, when the God implements something in our hearts, He will implement in your mind and it will also implement it in your heart.
और जब परमेश्वर हमें कुछ चीज़ों को बताता है, कराता है, तो वो हमें सबसे पहले हमारे बुद्धि दिमाग में और फिर हमारे हृदय में देता है। And then, or when you are clear with the God's concept, what God wants to do from your life, and what is the God's purpose on your life, then when you move forward, don't hold on. You move forward. In between, you may not have resources. In between, you may not have things which you wanted, but you need to move forward, and you will see the God's provision on the path of your success. हम कई बार जब परमेश्वर हमारे दिल और दिमाग में चीज़ों को देता है और हम उसको लेकर चलते हैं, तो हमारे लिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो रुकावटें हो जाती हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मेरे प्रिय, उसको लेके पकड़ के बैठना नहीं, लेकिन हमें चलना है। जब हम चलेंगे तभी हमें परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्स, बहुत सारे व्यवस्थाओं को करेगा हमारे जीवन में। It is nothing to do what achievement you have, what success you have. It's all you're focusing on your purpose. It's nothing to do with your what you have attained, whatever you have achieved, whatever you have success, but it's all your focus on your goal. और हमारा जो भी आपने आज तक जितना भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया या उसके लिए कर रहे हैं, वो सब उन सब बातों से है। लेकिन हमारा गोल, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाएं। Don't stop working. हम सबको ये काम करने की आवश्यकता है, हमें रुकने की जरूरत नहीं है। To one and characters, they are very brave. और जो एक आंट का मतलब चींटी का जो क्या है, वो है चरित्र है, वो बहुत ही मतलब कि उसका है बहादुर वाला दिखाने वाला साहस। And second is prepare ahead or prepare before time. और जो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं चींटी का, वो समय से पहले चीजों को तैयार करने वाली बात है। Brave means they teach us, or no matter how terribly things go, look ahead of you. और जो साहसीपन है, उसका मतलब ये है कि मतलब कि चाहे वो इतनी साहसी है कि कितना भी मुसीबत है, कितनी भी संकट है, तकलीफ है, लेकिन उस सब बातों को दूर करते हुए वो आगे बढ़ती जाते हैं। साहसपन का ही मतलब है। They are a lot brave than your action of other people. और वो लोग जब हम देखें कि हमारे जो हम कार्य करते हैं उनसे बढ़कर वो कितने साहसी हैं। They don't care what will happen. They just move forward. और ये जो चींटी लोग हैं, वो बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रखते हैं, उनको ये कोई चिंता नहीं कि क्या होगा आगे, लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं। The first thing, the ant is so brave and they have sense of discipline. और जो चींटी लोग हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि वो बहुत ही बहादुर हैं, लेकिन साहसी हैं। वो कभी भी उनके जो सेंस है, जो विवेक है, वो बहुत ही मतलब निडर है। Without a mistake, they march after one another in line. बिना गलती किए हुए वो एक के पीछे एक आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। Without dispute or accident. और बिना किसी गलती के, बिना किसी समस्याओं से। They are about in order. और वो हमेशा व्यवस्थित रहते हैं। And but wherever, everywhere in life, man finds loophole to divide. और जब हम एक मनुष्य को देखते हैं कि वो हर समय एक हुक की जरूरत पड़ती है उसको सीधा करने के लिए। No, they are already focused, and they are many in the line, but they all go systematically. They don't have a dispute. They have order to move, but man is not. Man is for small thing. They are finding reason to drop down and bring the division. तो जब हम चींटियों को देखते हैं कि वो इतनी लंबी लाइन और एक के पीछे एक बिल्कुल ऑर्डर में जाती हैं, व्यवस्थित होकर के जाती है, लेकिन मनुष्य अगर कोई छोटा सा भी समस्या आ जाती है तो वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं और अपने आप को मतलब कि अलग करने की कोशिश करते हैं। Some small word must have hurt you, and you are drawn back to your purpose. और शायद कुछ ऐसे कोई शब्द आपको किसी ने हर्ट कर दिया, तो आप वो शब्द को पकड़ के रह जाते हैं और उससे उन सब बातों से आप पीछे हटने लगते हैं। But there is for this, and they are self-disciplined. They don't care what's happening, but they are just moving forward, marching on, going ahead, nothing to worry. And you and I need to learn from that first thing, that we need to be in order. We need to be in a discipline in a life.
मेरे प्रिय, जब हम चींटियों को देखते हैं वो बहुत ही साहसी हैं, वो अपने निडरता के साथ में आगे बढ़ती चली जाती हैं। हमें भी उनसे सीखना है कि हमें भी अपने जीवन में व्यवस्थित होना है और आगे बढ़ते जाना है। Don't care of what the people think about you. और कोई भी चिंता ना करे, उनके लिए सोचे भी ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। People are always behind to divide, but you should focus on, you should have a disciplined life to move forward on your goal. हम लोग जो हैं वो हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमारे जो केंद्र है उसमें बढ़ने से हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। And the second, दूसरी बात, ignore the diversion. और जो डाइवर्शन मीन्स हमें परिवर्तित होना. हाँ, परिवर्तित होना, अपने आप को परिवर्तित ना करें। Suppose when ant is going, a row of ant is going, and you put your finger in between. अगर मैं एक बात को बताना चाहती हूँ, जब चींटियाँ सीधे लाइन में जा रही हैं और उनके बीच के जब वो लाइन के बीच में एक उंगली रखेंगे तो They will not turn back from there, but they will divert it and they will again connect to their goal. और वो लोग क्या करेंगे कि उंगली के पीछे से वापस नहीं मुड़ जाएंगे, लेकिन वो साइड से होकर के फिर से अपनी लाइन में जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। Do you understand how wise they are? हम समझ सकते हैं वो कितनी बुद्धिमान है वो लोग, How determined they are? और वो कितने ही निर्भय हैं। Determined. Nothing. You cannot stop me with my purpose. I supposed to go from here to Nagpur. In between, in a Rajnagaon, there is something happen. I need to go to Nagpur. It doesn't matter. I have to cross some way, but I need to determine. You have to be determined in your life. हम सबको अपने जीवन में बिल्कुल पूर्णता डिटरमाइन होना है। You should not. Your finger cannot be stopping you to stop your work. और जो हमारी उंगली या हमारी ऐसी कोई बात है हमें आगे बढ़ने से रोके ना। You should not stop by the problems. हमें अपने आप को मतलब कि नहीं रोकना है कि हमारी जो समस्या है उनके कारण हम अपने आप को रोकें आगे बढ़ने से। You should keep going. Your silly problems should not stop you to go. Focus on. Be brave. Be overcome of your problems. हमारी ये छोटी छोटी कोई समस्याएं, कोई मुसीबतें हमें आगे बढ़ने से ना रोके। इन सब बातों से ऊपर निकल के हमें आगे बढ़ते जाना है। Third thing which you and I need to learn from the ant. तीसरी बात हमें और आपको चींटियों से सीखनी है। And they have a spirit of sharing. उनके अंदर जो एक आत्मा है वो क्या, एक शेयर की आत्मा, मतलब कि बांटने की आत्मा है। And share everything they get. और जो भी वो लोग प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो सब एक दूसरे को बांटते हैं। Whatever they collect, they share each other. जो कुछ भी चींटी लोग इकट्ठा करते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, बांटते हैं। They never eat alone. वो कभी अकेले नहीं खाते हैं। But what do women do? लेकिन मनुष्य की फितरत क्या है? And whatever they get, they share. They never eat alone. What about men? और जब हम चींटी को देखते हैं वो जो भी प्राप्त करती है एक दूसरे से बांट करके खाती है, लेकिन मनुष्य की फितरत क्या है? We find something immediately. We try out to best hoarder in the secret place. और हमारे मनुष्य की फितरत क्या है कि जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम जाके छुप करके साइड में हो जाते हैं। We hide. We put in the store place, very secret place we keep. जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसको हम जाके छुपा के कहीं। This is for me. और ये मेरे लिए, ये मेरा This is है। for my family. ये मेरे परिवार के लिए है। This is for what? This is for my kids. और ये मेरे बच्चों के लिए है। But they have a spirit of sharing. और वहाँ पर हम चींटियों को देखते हैं कि उनके अंदर They never बांट करके, eat alone. वो कभी भी अकेले नहीं खाती हैं। They share everything. वो सब एक दूसरे को बांट के खाते Dear हैं। friends, मेरे प्रियो, dear people of God, मेरे प्रभु के लोगों, you and I need to learn to share for the kingdom of God. हम और आपको सीखना है कि हम परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से एक दूसरे को शेयर करके बांट करके चीजों को सहभागी हो सकते हैं। The resources which you have, the resources which you have been blessed, this resource has to be shared for the kingdom of God. और जिन स्रोतों से हम आशीषित हुए वो स्रोतों को हमें दूसरों को भी मतलब कि बांटने हैं और उनसे, ताकि हम भी आशीषित हों और दूसरे भी आशीषित हो जाएं उन बातों से।
when you share, it gives you a great joy. और जब हम बांटते हैं वो हमें बहुत ही आनंद देता है. Second part we have to learn. In this we learn first thing that we have from the end we have to learn these things that they have sense of discipline. जो चींटी से सीखते हैं कि उनके अंदर एक मतलब कि एक व्यवस्था में रहने की एक वो है. They ignore the diversions. और वो लोग मतलब कि डाइवर्शन को इग्नोर करते हैं. They don't care what problems are in front of them, but they overtake the problem and move to the goal. वो कभी भी समस्याओं को अपने आगे लेकर नहीं चलते, लेकिन समस्याओं से हटकर आगे बढ़ते चले जाते हैं. And third, they have a spirit of sharing. और तीसरी बात है कि वो अपने मतलब कि बांटने की उनका आत्मा है. My friends, मेरे प्रियो, these all are important for all of our lives. ये सारी बातें हम सब के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं. Now let's come to the second part. आइए हम दूसरे भाग में चलेंगे. The first we have seen they are brave, and second part they prepare before time. और पहली बात में कि वो बहुत ही मतलब साहसी हैं, और दूसरी बात में कि वो समय से पहले चीजों को तैयार रखते हैं. Ants are continuously preparing for the seasons which yet to come. और जो एंट और चींटियां हैं वो समय से पहले चीजों को तैयार करती हैं और संभालती हैं. It is totally different from human behavior. और ये मनुष्य की जो व्यवहार से बिल्कुल अलग है. Your priorities can be sometimes be drowned by what you feel like doing. और हमारी जो पहले प्रमुखता क्या हो जाती है कि जो अभी हम जिस कार्य को कर रहे हैं हम उसको मतलब अपना प्राथमिकता देते हैं. But this is not with them. लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है. They are preparing, continuously preparing season yet to come. और वो लोग हमेशा तैयारी रखते हैं कि जो सीजन आने वाला उसके लिए हमेशा पहले से तैयार रखते हैं चीजों को. 4 things we have to learn in this session. और इसमें इस जो भाग में हम 4 बातों को सीखेंगे यहाँ पर. Or another way, this will be the 4th thing. और यार ऐसा भी बोल सकते हैं चौथी बात है जो कि हम सीखने जा रहे हैं. Mind your own business. हमें अपने कार्यों पर Mind your business. कि हमें अपना काम खुद ही देखना है, संभालना है. Don't look. Often we like to talk about others or out our friends, society, how bad is the world. हमेशा हमें अपनी चीजों को देखना है कि जो कि हमें जो कर रहे हैं, ना कि हमें दूसरों की मामलों में कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान न देते हुए दूसरों की बातों में बहुत ध्यान देते हैं. We have lot of time to talk about others and talk them others' business. और हमारे पास बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं है. We have lot of time to discuss about what is happening other side, but from ants we have to learn. They are minded for their business. और जो चींटियां हैं हमें उसे सीखना है कि वो सिर्फ अपने कार्यों पर, अपनी बातों पर ध्यान देती हैं और वो पहले से विचार करती हैं कि किस जो सीजन आने वाला उसके लिए कैसे तैयारी करना है. लेकिन मनुष्य है कि वो इधर उधर बातों में बहुत अपना दिमाग लगाता है. We should concentrate on what we want to do it than anything else. हम सबको अपने आप में कंसंट्रेट करना है, केंद्रित रहना है. वो जो हम कर रहे हैं उस कार्यों पर हमेशा केंद्रित रहना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. And 5th thing, और पांचवी बात, टीम वर्क. टीम वर्क मतलब कि सामूहिक कार्य. Everything an ant does for the benefit of colony. और जो चींटियां हैं वो जो भी कार्य करती हैं वो सब एक मतलब कि एक साथ में रह करके एक समूह में रह करके करती हैं. This is not for ant, but this is for their group. Colony. वो सिर्फ एक चींटी अपने लिए नहीं या सिर्फ एक चींटी के लिए नहीं, लेकिन वो अपने पूरे समुदाय के लिए वो कार्य करते हैं. They work for their benefit for all colony. वो अपने पूरे समुदाय के मतलब कि उन्नति के लिए कार्य करते हैं. They will work until they are done with. और वो उस समय तक काम करते हैं कि जब तक उनका काम वो पूरा नहीं हो जाता तब तक काम करते हैं वो लोग. Are you able to understand? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? Are you getting me? क्या मुझे समझ पा रहे हैं? Are you able to understand? Are you able to learn from them? They are working too much benefit for their own community or colony.
वो लोग यहाँ पर हम देखते हैं चींटियों को किस प्रकार से बहुत कार्य करती है कि जब तक उनके जो भी समुदाय के सारा समुदाय में जितने भी चींटी लोग हैं उन सब की जरूरतें पूरी ना हो जाए तब तक वो लोग कार्य पूरा करते हैं. In the scripture when we study, जब हम वचन में पढ़ते हैं verse 7, वचन 7, it says, which having no chief, no officer, no ruler. उनका ना तो कोई न्यायी, ना अधिकारी और ना कोई शासक होता है. But they know their duties and they do everything they can do to get their duties complete. लेकिन वो अपने जो उनके जो कार्य है उनको बहुत अच्छी रीति से समझती हैं और वो वहाँ तक करती है जब तक वो पूरा काम हो नहीं जाता है. That kind of attitude you and I need to develop. उस प्रकार का हृदय, उस प्रकार का मतलब कि स्वभाव हम सबको अपने जीवन में लेके आना है. I have to finish my work. I have still to complete. I will not take rest. I will not done with this. I will achieve what my duty has to be required from me. हम सबको उतना ही नहीं लेकिन हमेशा तैयार रहना कि नहीं, जब तक हमारा वो जो केंद्र जिस चीज पर आपने अपना वो किया है, निर्धारित किया है कि नहीं ये उस केंद्र बिंदु तक पहुंचना है कि नहीं, यस आज मुझे पूरा करके रहना है, यहाँ तक पहुंचना है और ये सब मेरे द्वारा होना ही चाहिए. Don't make excuses about what you don't have and just do it. Just go on. God will bring the resources. God will bring the things which you require to accomplish your thing. But don't stop here. But focus on. Go on. Move forward. Move forward. You will achieve. Definitely you shall accomplish your duties. हमेशा हमें ये कंप्लेन नहीं रखनी है कि अरे हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, इसके कारण हम आगे ना बढ़ें. लेकिन मेरे प्रिय वो सब बातों को भुलाते हुए, अलग करते हुए, हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेस उन सबको लेते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ प्राप्त कर पाएं. This is my statement. I always say, man is superstar of excuse. ये मेरा एक जो है वो है कथन है कि जो इंसान है, मनुष्य है, वो एक्सक्यूज बनाने में बहुत ही सुपरस्टार है. Superstar excuse. No. For an example, ask somebody supposed to come for meeting you 10 o'clock. और यदि हम किसी से कहें कि आज 10 बजे प्रेयर के लिए आना है, and they will come by in Indian system they will come by 10:30 or 10 o'clock or 10:30 10:45. और भारतीय समय के अनुसार अगर देखा जाए तो 10 बजे बुलाया गया तो 10:45 पर 10:30 पर पहुंचेंगे. And when they come, in between their mind they will be always preparing what the pastor will ask me, how I will respond to him. I will tell him I got met that person, my bicycle got damaged, my scooter got punctured, my petrol was not there. Excuse. They are building up one excuse upon excuse to fact they could not reach on time. अगर वो समय पर जब नहीं पहुंचते तो उसी मीनवाइल वो लोग क्या सोचते कि अभी मैं पास्टर पूछेगा क्यों लेट हो गया तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरे को मेरा मित्र मिल गया है, मेरा ये ऐसा हो गया वैसा हो गया. तमाम बातों को हम एक छोटी सी बात को छिपाने के लिए इतना सारा बहाना बनाएंगे. But right thing was you supposed to be there on time in your goal. लेकिन सही बात ये है कि हमें उस जगह पर बिल्कुल सही समय पर पहुंचना है. My friends, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, be determined on your duty to accomplish on time and complete it for whatever it costs. You be on time. Be on your duty. Complete your duty. मेरे प्रियो, हमें दृढ़ निश्चय रहना है कि जो भी हमें कार्य सौंपे गए हैं, हमें दिए गए हैं, उनको हमें पूरा करके ही रहना है. Fifth thing. पांचवी बात, adopt the surrounding. अडॉप्ट परिस्थितियों को ग्रहण करना. हाँ. Means accept the challenges. हमेशा तैयार रहे उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए. You can find ants just about everywhere. हम चींटियों को हर जगह देख सकते हैं. Ants knows where to find the resource and you should do the same. और जो चींटियां हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि कहाँ से क्या रिसोर्स है, कहाँ से क्या चीज मिल सकती है. उसी प्रकार से हमें भी बनना है. Be quick to adopt your surrounding and don't wait for the wake up call.
और हमेशा तैयार रहना कि हमें किस प्रकार से अपने मतलब कि व्यवहार करना है चारों तरफ से। Ants knows where to find her resource. और जो चींटियां हैं वो जानती हैं कि मेरा कहाँ पर चीजें हमें मिल सकती हैं, आहार मिल सकता है। Dear friends, मेरे प्रियो, God has blessed with a resource. परमेश्वर ने हम सबको बड़े ही रिसोर्सों से आशीषित किया है। We are the people of full of resources. और हम लोग ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के आशीषित लोग हैं कि हम लोग आशीषित हैं बहुत सारे रिसोर्सेस के द्वारा। But only things you should go and find your resource. लेकिन बात ये है और सोचना है, कहने की बात मतलब कि करने की बात ये है कि हमें जाकर ढूंढना है रिसोर्स को। Don't wait that resource will come to you. ये मत कभी इंतजार कीजिए कि कोई रिसोर्स हमारे पास आएगा। But they go and find out their resources. चिड़ियाँ जाती हैं और अपने रिसोर्स को ढूंढती हैं कि कहाँ They से know क्या where मिलेगा। is my resources and they just go and get it. वो लोग जानती हैं और जाती हैं और ढूंढती हैं और वो तुरंत लेके वापस आती हैं। There in Hindi one statement is there. हिंदी में इस प्रकार से कहावत है, जब प्यास लगेगा तब कुआं नहीं खोदने का, बट जब आपको जरूरत नहीं है उसी समय में कुआं खोद कर रखो ताकि जब आपको प्यास लगे तो आपके पास में पानी रहे. That's what the Hindi saying. When you are thirsty, don't dig the well. जब हिंदी में इस प्रकार से कहा गया है कि जब आपको प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना है, लेकिन उससे पहले तैयार रहना है। Adopt the surrounding. और हमें सारी चीजों को सीखना है, लेना है। And we should get the resource, get the resource on time. और हमें वो जो रिसोर्सेस हैं हमें अपने समय पर प्राप्त करने हैं। And finally, और आखिरी बात, hard work matters. एक कठिन परिश्रम बहुत मायना रखता है। God loves the people those who work hard. परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। Your labor in the Lord is not in vain. That's what the 1 Corinthians chapter 15 says. पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 में जो 15 अध्याय में इस प्रकार से कहा गया कि जो भी हम कार्य करते हैं वो परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। Your labor is not vain. आपका कार्य व्यर्थ नहीं है। Your hard work matters. आपका कठिन परिश्रम बहुत मायना रखता है। Only the people require in the world those who work. और इस संसार में वही लोग मतलब कि मांगे जाते हैं, रखे चाहते हैं, उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। Lazy people are not demanded. कोई किसी को भी आलसी लोग पसंद नहीं है। Lazy people are not for market. और जो क्या बोलते हैं आलसी लोग हैं वो बिल्कुल भी किसी भी के लिए भी नहीं चाहिए। But hard work matters. लेकिन कठिन परिश्रम मायना रखता है। Ants are noted to carry out objects of bigger than themselves. और वो जो आंट है, चींटियां हैं, वो अपने से ज्यादा बढ़कर कोई चीज नहीं लेके आ पाती हैं। No. They are capable to take more than what they can. अच्छा सॉरी। जो चींटियां हैं वो हमारे अपने से मतलब कि जो कैपेबल जितनी उनकी कैपेसिटी उससे भी ज्यादा कार्य करती हैं। Sometimes you will see the very tiny, very tiny ant will pulling a big small pieces of bread or a biscuit. हाँ, जब हम कभी ध्यान से देखें तो जो छोटी सी चींटी होती है, इतनी छोटी सी चींटी और एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा और बिस्किट का टुकड़ा खींच के ले जाती है। They love to have challenges. और उनको बड़ा पसंद है कि इस तरीके की चुनौतियां वो अपने जीवन में लेके चलें। And they don't drop it. They try their best, and then meanwhile another will come and help them to pull, but they will never. They love to have the challenges. और वो इस प्रकार जब देखते हैं कि एक आएगी, अगर वो नहीं ले पा रही तो दूसरी भी उसके साथ उसको धक्का लगाएगी और वो कभी छोड़ती नहीं कि नहीं अरे ये बहुत कठिन है, नहीं ले जा सकते। हमें आवश्यकता है कि वो चैलेंज को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। This is only made possible through the sheer hard work and determination. और ये सिर्फ कैसे हो सकता है कि जब हम बहुत कठिन परिश्रम करेंगे और हम कार्य को करने के लिए केंद्रित हो जाएंगे। Love to face the challenge. हमेशा वो परिस्थितियों को सहने की और
उनको लेने की हमेशा चाह रखें। Dear friends, मेरे प्रियो, your God is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ है। No challenge is bigger than what you think, because when God is on our side, nothing is against us. और ऐसा कोई भी चुनौती नहीं है कि जो आपसे आपके सहने से परे हो, वो आपके साथ है। But God is with us. लेकिन हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। You have a challenges. Love your challenges. Buy the challenges and do it more, that you can determine. I have determined to do this one. और जो आपने दृढ़ संकल्प किया है कि ये कार्य मुझे करना है, उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार करें और लेके चलें कि नहीं, मुझे ये करके ही रहना है। Make in life 2 terms of goal. और हमारे जीवन में दो 2 terms of goal. हाँ, 2 गोल को मतलब कि 2 प्रकार के लक्ष्य बनाने हैं. 2 प्रकार के लक्ष्य बनाने हैं। One is called short term goal. और एक है जो कि कुछ ही समय के लिए है, It may be next month, और शायद वो अगले महीने तक ही or खत्म it हो may be जाएगा। next 2 months. और वो लक्ष्य शायद 2 ही महीने में खत्म That हो is जाएगा। called short term goals. वो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। And then another is called long term goals. और एक ऐसा है कि जो कि एक लंबे समय तक लक्ष्य को लेकर चलते रहना, After 10 years, what would be and where you will be? कि हम वो ऐसा मतलब कि लक्ष्य कि अब से 10 साल और 15 साल के बाद हम क्या होंगे, What is in your mind after 20 years? और 20 साल के बाद हमारे जीवन में जो हमारे दिमाग में है वो लेके चलना है कि क्या होगा। That is called long term goals. इसको कहते हैं एक लंबे समय का लक्ष्य। Dear friends, मेरे प्रियो, we are eagerly waiting to Jesus to return. हम सब लोग बहुत ही मतलब कि उससे eagerly वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि Jesus is coming soon. कि यीशु मसीह कब आएगा, और वो जल्दी आने वाला है। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। And we should be excited to meet him. हम सबको बहुत ही उत्साहित रहना उससे मिलने के लिए, But same time, लेकिन उसी के साथ we should be also carry out the responsibility which the Lord has given to you until he comes. और वो इसके साथ ये भी है कि जो परमेश्वर ने हमें जो चीज़ें दी हैं और जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको ले करके वहाँ जब तक वो आता है उस समय तक खत्म करते हुए। It may take 100 years, it may take 50 years, it may take 20 years, it may take 5 years, it may take next year, but you should be ready with your responsibility to carry out till he comes. हम सबको अपने जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमें दी हैं उसको लेकर चलते हुए आगे बढ़ते जाना। मुझे नहीं पता वो कब आएगा, 20 साल, 100 साल, 50 साल, 10 साल या अगले साल कभी भी आ सकता है यीशु मसीह। तब तक हमें अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलना है। You should make well plan on your goals. हम सबको अपने लक्ष्यों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्लान करके आगे लेके चलते हैं। My friends, I do not know what terms of goal you are carrying with you. मुझे नहीं पता है मेरे प्रियो कि आप किस प्रकार का लक्ष्य अपने जीवन में लेके चल रहे हैं। But let me tell you one thing. लेकिन एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, We have to learn from the ends. हम सबको चींटियों से सीखना है। We should learn that we should live life of discipline. हमें एक व्यवस्थित जीवन जीना है। We should also learn to ignore the diversions. हमें इधर उधर के अपने दिमाग मतलब कि ध्यान को वो नहीं भटकाना नहीं है। Learn that they have a spirit of sharing. Nothing is yours in the kingdom of God. Everything belongs to God and God's kingdom. You are the resource. You are a caretaker of the things of God. हम सबको एक शेयरिंग का नेचर रखना है, बाट व्यवहार के साथ में, और जिस प्रकार से चींटियां भी करती हैं, और हमें परमेश्वर के राज्य में इसी प्रकार का व्यवहार रखना है। Mind your business. Don't interfere others. Don't waste your life with handling others' business. Handle your own business. और हमें दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं, लेकिन हमें जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी उसको लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। Do everything betterment of your fellow brothers. और हमेशा ये सोचे कि जो हमारे प्रिय लोग हैं हमसे जुड़े हुए उनके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। That is called teamwork. उसको कहते हैं एक ग्रुप, सामूहिक कार्य। In the kingdom of God, we are all partner in the God's kingdom. हम सब एक परमेश्वर के कार्य में, राज्य में पार्टनर हैं। and our partnership matters.
और हम सबकी पार्टनरशिप है वो बहुत मायने रखती है। We all are different, uniquely blessed by the Lord with the resources and talents. और हम सब अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम सब अलग अलग मतलब कि ज्ञानों से बातों से भरे हुए हैं और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। I may be useful for your ministry and you are useful for my ministry too. हो सकता है कि मैं आपके सेवा कार्य के लिए मतलब कि इस्तेमाल हो सकता हूँ और आप भी मेरे सेवा कार्यों में भी I may not be able to perform exactly what you are doing, or you may not be able to do what exactly I am doing, but that's what we are called a partners in the kingdom of God. We are uniquely placed in the ministry of God, in the kingdom of God, to carry out the mission, carry out the work of God in life. और हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं है, लेकिन हम सब एक दूसरे या आप जो मैं चाहता हूँ आपसे वैसा नहीं, लेकिन हम सब जो भी परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दी उनको ले करके हम सबको एक साथ चलना है और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। And you adopt the surroundings. और हम सबको व्यवहारिक बातों को लेना है। Find out your resources. और हमें अपने मतलब कि रिसोर्स को ढूंढना है। Don't wait for the resources, but you should to find out your resources. हमें ये नहीं सोचना है कि कोई रिसोर्स हमारे पास आएगा, लेकिन हमें जाके ढूंढना है। But when you have resources, you will see that God will direct you to multiply and utilize that resources. और जब हमारे पास रिसोर्सेज हो जाते हैं तो परमेश्वर उसको और भी बढ़ाता है और भी मल्टीप्लाई करता है। Be blessing to others. हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर जाएं। And your hard work is not in vain in the kingdom of God. और हमारा कठिन परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है, उसके राज्य में व्यर्थ नहीं है। Nothing is vain in the kingdom of God. कुछ भी परमेश्वर के राज्य में व्यर्थ नहीं है जो भी हम कार्य करते हैं। Even Bible tells, यहाँ तक कि बाइबल इस प्रकार कहती है, if you give a glass of water to somebody to consider he or she as my servant, you shall have reward on earth and heaven. यहाँ बाइबल बताती है कि यदि हम यीशु के नाम में किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो उसका भी एक प्रतिफल हमें मिलता है। My friends, मेरे प्रियो, you have a great reward in the kingdom of God. हाँ मेरे प्रियो, आप सब के लिए एक बहुत ही पुरस्कार है, परमेश्वर में बहुत बड़ा पुरस्कार है। God is not a debtor of us. और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। Whatever you will do for him, he will honor your hard work. He will multiply the blessings upon your life. और जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, परमेश्वर उनको बढ़ाएगा और वो आपका आदर करेगा, आपके कार्यों का आदर करेगा। You may be small, but be lover of things to do hard or big. आप भले ही चाहे बहुत छोटे हों कुछ बातों में, लेकिन हमेशा तैयार रहें परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करने के लिए। That's what the one statement of William Carey said. विलियम कैरी ने इस प्रकार से कथन कहा है। He said, attempt great thing, expect great thing from God and attempt great thing for the Lord. परमेश्वर से बड़ी चीजों की अपेक्षा रखें और उस बड़े कुछ करने के लिए उसके लिए कुछ बड़ा करने के लिए अपेक्षा रखें। May God help us and understand that your labor in the Lord is not in vain. परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको समझदारी दे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Proverbs chapter 6 is the very, very powerful word. नीति वचन का जो 6वां अध्याय है, 6 वचन है, वो बहुत ही सामर्थी वचन है, बहुत शक्तिशाली वचन है। We are not lazy, but we are the people who carry out the work of God. हम लोग आलसी नहीं हैं, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य को आगे ले चलने वाले लोग हैं। If you are going slow, don't worry. There is a time to go slow, but keep on focusing on your thing. हाँ, शायद हो सकता है हम थोड़ा धीरे जा रहे होंगे, लेकिन इस बात की चिंता ना करें, लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि हम किस केंद्र पर चल रहे हैं, क्या लक्ष्य हमारा जो परमेश्वर ने हमें दिया वो लक्ष्य पर हमें चलते जाएं। But day is coming, then you will be busy. When you will be running fast, that time also you need to focus on. और एक समय आने वाला है कि हम सब बहुत ही व्यस्त हो जाएंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। Let's hold on our responsibilities. आइए हम सब अपनी जिम्मेदारियों को पकड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Thank you for joining us in the worship. धन्यवाद सभी का कि जो उन्होंने ये सब
सहायता की मतलब कि हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर, may God bless you richly and immensely. परमेश्वर आप सबको बहुत का आशीष देता है। Jesus loves you. यीशु आपको प्रेम करता है। God bless you. परमेश्वर आपको Stay blessed. स्टे ब्लेस्ड।